Remember that when we talk about our class, especially BA first years, के our lovable students, you have given your beautiful company. Thanks for giving you your beautiful company, and we know it very well. Ki we all are living in a crucial situation, and this situation is undoubtedly it's going to from bad to worse. Yeah, if I use the word, कि undoubtedly there are so many hurdles, there are so many problems, there are so many issues and so many challenges before us, and we know it very well कि in past we also found so many problems, so many challenges we found even last year, but we ultimately have the firm determination, we have the resolution, and with the help of Almighty God, and inshallah whatever the problems we have, we overcome it. And in near future, what the problems we are facing, surely and certainly, if the blessing of Almighty God is with us, surely this problem will be overcome. Inshallah, every problem overcome hogi with the blessings of Almighty God. So what I want to tell you ki we are here for what? We are in our class, and this class is what this, it's a virtual class, it's not a physical class where there is a classroom where students are sitting and teacher is has taken chalk and duster using, yeah, rubbing the whiteboard or blackboard, all this, no chemistry at all. It means that it's not a physical class, it's a virtual class. You are at your home and I myself is at my home, and we are, but we are what we are interacting with each other. This is what it's also the it's a good thing, and it's what it's the, you will come to know what it's the blessing of Almighty God, blessing of Almighty Allah, that He has given us technology, He has given us science, and with the help of these tools, with the help of science and technology, physically we are not present, but virtually we are here. And you all have given your beautiful company that encourages me, that give me strength, that give me power to interact with you, to conversate with you, to talk with you, and to tell you some positive things. So, in this crucial situation, when you are at your home, we know it very well that there are some instructions of the government, there are some guidelines, and we have to follow that instruction, that guidelines for the for what? To protect ourselves and the people who are living with us, and also to protect our society, to protect human beings and humanity. मानव को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट का, जो गाइडलाइन है, उसे हम सबको फॉलो करना है, और हम लोग फॉलो कर भी रहे हैं. Being a teacher, my duty is to tell you some good words. Being a teacher, my duty is to tell you some sweet words. But those good words, those sweet words should be where it should be related to the ground of reality. Because I am a teacher uh, who does not who means I don't have any interest ultimately to tell you any fairy tale. I don't have any interest to tell you any story which is related to any king or queen. But on the ground of reality, always I believe ki what the problem we have, what the problem or challenges or issues we are going to face, we have to be ready to face it. We have to go with those problems. And remember that when you take these things, when you follow those points, one thing I would like to tell you, in this crucial situation, time will come when these things will be overcome, when these things will be resolved. ये रिजॉल्व होगा, लेकिन ये रिजॉल्व कब होगा? जो हमारा फर्म डिटर्मिनेशन है, जो हमारा रिजोल्यूशन है, उस फर्म डिटर्मिनेशन और रिजोल्यूशन के साथ इफ वी गो, इफ वी pass our life. And what is our firm resolution, what is our determination? To follow the guideline, to follow the instructions, advices given by government. Yeah, ultimately you can say path maker, torch bearers, other people who are working as a volunteer, doctors, so many things. तो उन सबको, और हम लोग तो टीचर हैं और आप लवेबल स्टूडेंट्स से, मीन्स हम लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि स्टे एट होम. If it is very necessary, then you have to go out of home. And whenever you go out of home, use mask, maintain the physical distance, maintain the social distance. And remember that when you are in market, try to understand, when you are in market, don't be the
the part of the huge crowd. If the 4 people, 5 people, if they are gathered there, don't be the part of that crowd. Try to maintain the physical distancing, social distancing. That is very important, because if you want to overcome this hurdle, this is only the solution till now. यही केवल एक solution है. इसके अलावा जो और भी चीजें हैं, that is secondary thing. But the primary thing is that we have to use mask, we have to stay at home. If it is very necessary, then we have to go where? Then we have to go out of home, if it is very necessary. And when you go out of home, always remember that use sanitizer, use mask, tell other people, and try to just convey this message. Try to convey this message who are in your company. Ultimately, yeah, those who are in your with whom you go in market, with whom you interact, uh, uh, with such a type of people, you have to tell, you have to just tell them ki what you have to do. So with these words, what the suggestion I have to give, I have told you, but just I want to tell you about our topic. And what is that? That is, we have to follow, what we have to follow our syllabus, we have to follow our curriculum. जो कुछ भी है उसको हमें चलना है, उस पर हमें बात करनी है. उसमें सबसे पहला चीज कि ऑलरेडी जो बीए फर्स्ट ईयर में 2 पेपर्स हैं, उन दोनों पेपर्स को हमने कवर करा दिया है. उन पेपर्स में पेपर फर्स्ट पोइट्री है, वो ऑब्जेक्टिव मोड में आएगा. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि पेपर फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव मोड में आएगा, देयर विल बी 100 क्वेश्चन, 100 मल्टीपल क्वेश्चंस, and there will be no negative marking. You have to give the answer of all the questions. उसको आपको करना होगा और 50 मार्क्स का होगा. इसी तरह से जो पेपर सेकंड जो प्रोज है, उसमें से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन यू हैव टू प्रिपेयर. वो भी 50 मार्क्स का होगा. उसको भी मैंने पूरा करा दिया था. नाउ योर ड्यूटी इज टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. जो आपका ड्यूटी है वो चीजों को रिवाइज करना है. जो आपकी ड्यूटी है वो ज्यादातर अच्छे ढंग से चीजों को कवर करना है. और जो आपका ड्यूटी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम related to any topic, you can ask me, you can drop message in WhatsApp group, and always I'm ready to help you, because we all have done our job. I think from 23rd November we have started our class, and even we have gone in December, January, February, मार्च में कुछ हद तक हम लोगों ने 15 मार्च तक या जो भी टाइम रहा होगा उसमें हम लोगों ने क्लास को कवर किया था. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस. स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से कवर हुआ है, और आपने खूबसूरत नोट्स भी बनाई हुई है. आई डू रिमेम्बर इट, मुझे जहां तक याद आ रहा है. तो जो नोट्स आपने बनाया है, यू हैव टू रिवाइज दैट थिंग अगेन एंड अगेन. आपको उन सारी चीजों को बार बार रिवाइज करना है, उन सारे टॉपिक्स को लेना है, बार बार उन सारे पॉइंट्स को लेना है. इवन यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि पेपर फर्स्ट आई स्टार्टेड टू रिवाइज. पेपर फर्स्ट को मैंने रिवाइज करना भी शुरू किया था. जब मैंने पेपर फर्स्ट को रिवाइज करना शुरू किया था, आई हैव टेकन 2 पोएम्स. मैंने 2 पोएम को लिया हुआ था. एक पोएम आपका विलियम शेक्सपियर का लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रहा है. दूसरा पोएम आपका कौन सा था? जॉन डन का आवेल डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री. इवन दैट यू विल कम टू नो कि वो भी जो है आपका जो पोयम है, दैट्स पोयम से रिलेटेड जो लेक्चर है वो टीचमिंट ऐप पर भी अवेलेबल है, और टीचमिंट ऐप के अलावा यूट्यूब चैनल पर भी है. जिन लोगों को अभी तक वो लेक्चर टीचमिंट ऐप पे नहीं देख पाए हैं, उससे रिलेटेड कई लेक्चर टीचमिंट ऐप पे पड़े हुए हैं. फर्स्ट ईयर के सारे लेक्चर वहीं पे सेव हैं. यू कैन जस्ट गो एंड गेट दैट लेक्चर. यू हैव टू just revise. You have to find means you have to memorize it, recall it again and again. आपको memorize करना है, recall करना है, चीजों को ध्यान में रखना है. All these things you have to keep in your mind. Second thing I would like to tell you कि after taking these 2 poets, yeah, these 2 poems are these 2 poets, Avel Diksha for Abiding Morning and William Shakespeare का Let Me Not to the Marriage of True Minds Are True Love. I would like to take the third poet. Can you tell me who is the third poet in your syllabus? Who is the third poet in your syllabus?
नॉट गेटिंग द रिस्पांस। अगर कोई ये चीज पूछ लिया कि आपके जो है सिलेबस का थर्ड पोएट कौन है, तो शोएब, आयशा, या आप में से कोई भी। आपके पास बुक है आयशा? आप अपनी बुक या कॉपी में देख के मुझे बताइए कि थर्ड पोएट कौन है। आपको रजिस्टर लेके बैठना चाहिए था। यू विल गेट कि उसके बाद थर्ड पोएट के बाद जॉन ड्राइडन, थॉमस ग्रे, अलेक्जेंडर पोप, यू फाइंड दीज राइटर्स। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, इतने फेमस पोएट जिसका कि आपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट आपको नहीं कवर हो पा रहा है। सो रिमेंबर दैट कि इन टूडेज क्लास, जो आज की क्लास है, उस क्लास में हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक व्हाट, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक, yeah, in today's class we are going to take whom, in today's class we are going to take third poet, paper first, that is जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन को हम सारे लोग ये जानते हैं कि जॉन मिल्टन अ वेल नोन पोएट ऑफ प्यूरिटन एज। जो जॉन मिल्टन है वह एक वेल नोन पोएट है, और किस एज के पोएट है? प्यूरिटन एज के। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, वो कौन सा पॉइंट नोट करना है कि जॉन मिल्टन वाज अ वेल नोन पोएट ऑफ प्यूरिटन एज। वो प्यूरिटन एज के सबसे पहले पोएट रहे हैं। सबसे पहले पोएट या वेल नोन पोएट, जॉन मिल्टन वाज अ वेल नोन पोएट ऑफ प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज के एक वेल नोन पोएट है। और जो प्यूरिटन एज है, इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1625 टू 1660। 1625 ईस्वी से लेकर 1660 ईस्वी तक का जो पीरियड है, हम उसको किसके नाम से जानते हैं? प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं। फ्रॉम 1625 टू 1660, 1625 से 1660 ईस्वी तक का जो पीरियड है, हम उसको प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं। Now the third point which I want to tell you, when you talk about Puritan age, when you talk about Puritan age, when you talk about John Milton, remember that John Milton was the poet of, he was the poet of epic. He composed some beautiful epics. Second point you have to note down कि he was the poet of epic, a poet of epic. As you say, Milton, as you say, Shakespeare was a sonneteer as well as dramatist. In the same way, you have to remember, Milton was the poet of epic, EPIC. उन्होंने epic को compose किया। तो मिल्टन से रिलेटेड मैंने दो पॉइंट बताया। मिल्टन बिलोंग्स टू प्यूरिटन एज, इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1625 टू 1660। और इस प्यूरिटन एज को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा कैरोलिन एज 1625 से 1649, दूसरा हिस्सा आपका कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660। जो कैरोलिन एज रहा है, उस कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट किंग थे, जिनकी 1649 में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन वहां पे इंग्लैंड को संभालता है। यू विल कम टू नो ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल 1649 से 1658 तक ही मैनेजेस द होल इंग्लैंड फ्रॉम 1649 टू 1658। 1649 से लेकर 1658 ईस्वी तक उन्होंने पूरे इंग्लैंड को संभाला। 1658 से 1660 ईस्वी तक आपके रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं। रिचर्ड क्रॉमवेल उस चीज को मैनेज करते हैं या उस चीज को संभालते हैं। What I want to say, what I want to tell you, when you talk about Richard Cromwell, when you talk about Oliver Cromwell, remember that there are certain points before taking John Milton. We have to go
the political phenomena, the political scenario, the political condition or the political situation. 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट was assassinated. After the assassination of Charles First, who manages England? Oliver Cromwell. Oliver Cromwell manages England, yeah, who rules over England from 1649 to 1658. After the death of Oliver Cromwell, who comes? Richard Cromwell. तो तीन लोगों का डेट आपको ध्यान में रखना है. चार्ल्स फर्स्ट 1625 से 1649. चार्ल्स फर्स्ट की हत्या 1649 में हो जाती है. उनके बाद कौन आते हैं? ओलिवर क्रामवेल आते हैं. वो 1649 से 1658 तक आते हैं. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उनकी 1658 ईस्वी में ओलिवर क्रामवेल मर जाते हैं. उनकी मौत के बाद कौन आता है? रिचर्ड क्रामवेल आते हैं. रिचर्ड क्रामवेल 1658 से 1660 ईस्वी तक रहते हैं. और यही जो पीरियड है, यही जॉन मिल्टन का पीरियड है. जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन 1608. जॉन मिल्टन 1608 ईस्वी में पैदा हुए. डाइड इन 1674 और उनकी मौत 1674 ईस्वी में होती है. सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू टेल यू कि 1608 ईस्वी में जॉन मिल्टन पैदा होते हैं. 1674 ईस्वी में जॉन मिल्टन की मौत होती है. And next point which I want to say, which I want to tell you, when you take these points 1608 1674, तो 1608 1674 ईस्वी में आप देखेंगे कि उनका जो एजुकेशन है वो ट्रिनिटी कॉलेज से हुआ था. और वो जो जॉन मिल्टन थे, एक समय के बाद वह ही बिकेम ब्लाइंड 44 साल की उम्र में 1652 ईस्वी में वो पूर्णतः अंधे हो जाते हैं. 1644 साल की उम्र में 1652 ईस्वी. इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन विच इज asked oftenly. You will come to know कि this question is asked, ये पूछा जाता है. तो मिल्टन जो थे, he was born in 1608, died in 1674, and you will come to know कि इसके अलावा he became blind at the age of 44 in 1652. 1600 आपके 52 ईस्वी में 44 साल की उम्र में वो अंधे हो जाते हैं. दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जॉन मिल्टन ने क्या क्या लिखा. जॉन मिल्टन को हम क्यों याद करते हैं? जॉन मिल्टन सोनेटियर भी थे, प्रोज राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, और साथ ही साथ सबसे बड़े चीज की वो एपिक पोएट थे. ही वाज सोनेटियर, ड्रामेटिस्ट, प्रोज राइटर, एपिक पोएट. ही वाज द वर्सेटाइल पोएट. ही वाज अ प्रोलिफिक राइटर. वह एक प्रोलिफिक राइटर थे और वर्सेटाइल पोएट थे. जॉन मिल्टन जिस एज में आते हैं उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा नहीं था. 1642 में थिएटर को बैन कर दिया जाता है. 1643 में प्रेस को बैन कर दिया जाता है. दो चीजें आपको ध्यान में रखना कि 1642 थिएटर वाज बैन. 1642 में थिएटर को बैन कर दिया गया था. 1643 में प्रेस को सेंसरशिप कर दिया गया था. So you find these two important points. In 1642 theater was banned. In 1643 प्रेस वाज सेंसरशिप. जब आप इन दो चीजों को पाते हैं, 1642 में प्रेस को सेंसरशिप किया गया, 1642 में थिएटर को बैन कर दिया गया. तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जैसे ही प्रेस पे बैन किया गया, प्रेस की बैन के खिलाफ जॉन मिल्टन रोट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोज बुक. उन्होंने एक प्रोज वर्क लिखा था जिसका नाम एरियोपैजिटिका था, और वह एरियोपैजिटिका 1644 ईस्वी में आती है. ये जितनी डेट में बता रहा हूं कि 1642 में थिएटर को बैन किया गया, 1643 में प्रेस को सेंसरशिप किया गया, 1644 ईस्वी में जॉन मिल्टन रोट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोज बुक या प्रोज वर्क दैट वाज एरियोपैजिटिका उन्होंने लिखा. और वह कब आता है? वह 1644 ईस्वी में आता है. जब उन्होंने 1644 ईस्वी में लिखा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरियोपैजिटिका क्या है. एरियोपैजिटिका वाज द प्रोज वर्क ऑफ जॉन मिल्टन. यह जॉन मिल्टन का प्रोज वर्क रहा है, और इसमें उन्होंने प्रेस की फ्रीडम को लेकर के बात किया कि क्यों प्रेस पे बैन लगा दिया गया. प्रेस को मतलब आदमी को अपनी बात जो कहने की आजादी, जैसे आज के समय मीडिया बिक चुका है या प्रेस बिक चुका है, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है. ऐसे ही उनके समय में भी लोगों के बोलने पर, लिखने पर एक बैन कर दिया गया. तो उन्होंने कहा कि आखिर लोगों के बोलने पर या लिखने पर बैन क्यों किया गया? अगर आप लोगों की जो बोलने की आजादी है अगर उस पर बैन करा देंगे तो जो लोगों का थॉट है, इमोशन है, फीलिंग्स है, जज्बात है, it will not be expressed. The people would not like to be shared. The people would not like to share it. तो ये पार्टिकुलर चीज आता है. फिर से मैं बता दूं, वो जो है 1608 ईस्वी में पैदा होते हैं, 1674 ईस्वी में उनकी मौत होती है.
वो जिस एज से बिलोंग करते हैं उस एज को क्या नाम दिया गया? प्यूरिटन एज। और जो प्यूरिटन एज है, इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1625 टू 1660, 1625 से 1660 ईस्वी तक का पीरियड प्यूरिटन एज के नाम से जाना जाता है। इस प्यूरिटन एज को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा कैरोलिन एज है। कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट राजा थे। कैरोलिन एज का जो पीरियड है 1625 से 1649 ईस्वी तक है। उसके बाद जो आपका पीरियड आता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कॉमनवेल्थ पीरियड। तो कॉमनवेल्थ का जो पीरियड होगा वो 1649 से 1660 होगा। लेकिन होता क्या है कि जो कैरोलिन एज था, जो 1625 से 1649 के समय तक था, जिसके राजा चार्ल्स फर्स्ट थे, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। और वो हत्या कब होती है? वो हत्या 1649 ईस्वी में होती है। जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है और यह हत्या 1649 ईस्वी में होती है, तो यू विल कम टू नो कि देयर आर सर्टेन थिंग्स। इस हत्या के बाद पूरा एक पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाता है। इंग्लैंड से ऑटोक्रेसी खत्म हो जाती है, वहां पे डेमोक्रेसी आ जाती है। और डेमोक्रेसी के लीडर के रूप में कौन आते हैं? डेमोक्रेसी के लीडर के रूप में ओलिवर क्रॉमवेल आते हैं। ओलिवर क्रॉमवेल रूल्ड ओवर इंग्लैंड, ही मैनेज इंग्लैंड, ही कंट्रोल्ड इंग्लैंड फ्रॉम 1649 टू 1658। 1649 से 1658 ईस्वी तक उन्होंने उसको कंट्रोल किया। 1658 में उनकी मौत होती है। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं। रिचर्ड क्रॉमवेल कब से कब तक रहते हैं? 1658 से 1660 ईस्वी तक। इस एज में जो सबसे बड़ा पोएट आया हुआ वो कौन रहा है? जॉन मिल्टन रहे। और उसी एज के उसी पोएट के नाम पर इसको एज ऑफ जॉन मिल्टन कहा गया। जॉन मिल्टन कब पैदा होते हैं? जॉन मिल्टन 1608 ईस्वी में पैदा होते हैं। जॉन मिल्टन की मौत कब होती है? 1674 ईस्वी में। जॉन मिल्टन का जो अपना स्कूलिंग है वो कहाँ पे हुआ है? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उनका पूरा एजुकेशन होता है और उस कॉलेज का क्या नाम रहा है? ट्रिनिटी कॉलेज। एंड यू विल कम टू नो कि जो जॉन मिल्टन रहे हैं वो जो है क्या थे कि बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, वर्सेटाइल राइटर थे। और वो जो है एपिक भी उन्होंने कंपोज किया है, सोनेट भी उन्होंने कंपोज किया है, ड्रामा भी उन्होंने लिखा हुआ है, प्रोज भी उन्होंने लिखा हुआ है। उनका उनका जो प्रोज का वर्क है उसका नाम एरियोपैजिटिका है, जो 1644 ईस्वी में आई है। एरियोपैजिटिका के आने के पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यह था कि इन 1643 प्रेस वाज सेंसरशिप, प्रेस पर बैन लगा दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस पर बैन कब लगाया गया? 1643 ईस्वी में लगाया गया। उसके पहले जो है थिएटर पे बैन लगा दिया गया। तो थिएटर पे बैन कब लगाया गया? 1642 ईस्वी में लगाया गया। So we have to keep these things in our mind कि in 1642 what happened, in 1643 what happened। 1642 में थिएटर वाज बैन और 1643 में प्रेस को सेंसरशिप कर दिया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेस के बैन के खिलाफ मिल्टन ने जो वर्क लिखा था उसका क्या नाम था? उसका नाम एरियोपैजिटिका था। तो मिल्टन रोट एरियोपैजिटिका इन 1644। मिल्टन ने एरियोपैजिटिका लिखा और कब लिखा? 1644 ईस्वी में लिखा। तो जब मिल्टन 1644 ईस्वी में एरियोपैजिटिका लिखते हैं तो उसके पीछे एक रीजन था, दैट वाज व्हाट? दैट वाज कि टू अल्टीमेटली टू मेक प्रेस फ्री, प्रेस को स्वतंत्र कराया जाए। लोगों के बोलने की आजादी पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको कहीं ना कहीं वापस लिया जाए। इसको लेकर के उन्होंने मूवमेंट शुरू किया। लेकिन मिल्टन को अगर हमें समझना है तो हमें ध्यान में रखना होगा कि एज अ पोएट उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने क्या किया? दो एपिक लिखा जिसका नाम पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज रिगेंड है। पैराडाइज लास्ट आपके यहाँ सिलेबस में है। जो एपिक होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड। जो एपिक है वह लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स होता है। यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। इट इज रिटन इन ग्रांड स्टाइल, इट हैज एलिवेटेड थॉट, क्वाजी डिवाइन फिगर इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको लेकर के। और समटाइम्स अगर आप देखेंगे कि एपिक में किंग के बारे में, क्वीन के बारे में, किसी ग्रेट इवेंट को भी लेकर के लिखा जाता है। लेकिन ज्यादातर एपिक में उस सब्जेक्ट मैटर को लिया जाता है जो किसी ट्राइब से, किसी नेशन से या किसी ह्यूमन रेस से बिलोंग करता हो, जो उसके भाग्य को डिसाइड करता हो। तो यू विल कम टू नो कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने पैराडाइज लास्ट लिखा, उन्होंने पैराडाइज रिगेंड लिखा। जो पैराडाइज लास्ट है यह 12 किताबों में है, 1667 ईस्वी में पब्लिश होती है। अ वेरी कॉमन क्वेश्चन की पैराडाइज लास्ट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। और यह जो 12 किताबों में है, यह 12 किताबों में आपका कब आता है? 1667 ईस्वी में आता है। और यह किसका पैरोडी है? इट्स द पैरोडी ऑफ वर्जिल से एनीड। यह वर्जिल के एनीड का पैरोडी है। वर्जिल ने इसको, वर्जिल का जो एपिक है जिसका नाम एनीड है वह दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक रहा है। उसी को जॉन मिल्टन ने फॉलो किया था। और इसके अलावा एक चीज हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इस एपिक में उन्होंने किसके बारे में बताया? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर ने कैसे न्याय किया। किसके प्रति न्याय किया? ईश्वर ने कैसे जो है मानव के प्रति न्याय किया। वंस जो our earliest forefathers Adam and Eve, they were living where? They were living in heaven।
तो यू विल कम टू नो कि उन्होंने सब्जेक्ट मैटर द बाइबल से लिया हुआ है, लेकिन पूरा कैरेक्टराइजेशन, पूरा सारा चीजें खुद उनका है। तो हियर यू फाइंड व्हाट, हियर यू फाइंड इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप, हियर यू फाइंड द इन्वेंशन ऑफ व्हाट, हियर यू फाइंड द इन्वेंशन ऑफ द पोएट। पोएट ने चीजों को इन्वेंट किया है, इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप आप पाते हैं। कैरेक्टर्स में आप देखेंगे कि एडम है, ईव है, प्रॉफिट मोजेस है जिसको हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, और एक गॉडेस का भी उन्होंने जिक्र किया है, म्यूज गॉडेस का। इसके अलावा जो है सेटन है, बिल्जबब है, एंड सो मेनी अदर कैरेक्टर्स यू विल कम टू नो। चूंकि 12 किताबों में है तो और भी, लेकिन आपके यहाँ बुक फर्स्ट की केवल 26 लाइन है। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि ईश्वर ने मानव के प्रति कैसे न्याय किया। पहले जो इंसान स्वर्ग में रहता था, ही डिसोबेड या दे डिसोबेड द डिवाइन ऑर्डर ऑफ गॉड, गॉड गॉट एंग्री एंड थ्री देम फ्रॉम हेवन टू अर्थ। उसके बाद क्या हुआ, मौत का एक सिलसिला प्रारंभ हुआ, बट गॉड गेव अपॉर्चुनिटी टू कम बैक। गॉड ने इंसानों को एक मौका दिया कि आप कम बैक कर सकते हैं, यू कैन restore the blissful seat, you can again get the, you can again receive heaven, you can again make your entry into heaven। जब जो है आदमी ने, या आप कह सकते हैं हमारे अर्लीस्ट फोरफादर्स ने गॉड के एक तरह से डिवाइन वार्निंग को डिसोबे किया, तो उनको जमीन पर लाया गया, और इस तरह से जो है गॉड ने उनको एक मौका दिया कि आप दोबारा स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आई एम टेलिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिश्चियनिटी और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पैराडाइज लास्ट जो वहां पे रहा है। अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो मैंने बताया सेटन है, गॉड है, जीसस क्रिस्ट है, बिल्जबब है, और उसके बाद म्यूज है, और इसके अलावा प्रॉफिट मोजेस है। इन सब चीजों को लेकर के उसमें बात किया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्ड्स मैंने आपको पहले बता दिया था कि एन आइडियल मीटर ऑफ एलिजाबेथन एज, शेक्सपियर ने अपने पूरे प्ले ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हैं, जॉन मिल्टन ने अपना दोनों एपिक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने अपना और भी जो वर्क उनका रहा वो भी उनका ब्लैंक वर्ड्स में आया हुआ है। ब्लैंक वर्ड्स में क्या होता है, अनराइम फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है। इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, हेनरी हार्डर लाफसरे ने इंट्रोड्यूस किया था। कहां पे इंट्रोड्यूस किया था, अपनी उन्होंने जब वर्जिल की किताब एनीट का ट्रांसलेशन किया था, बुक सेकेंड और बुक फोर्थ, तब उसमें उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जो ब्लैंक वर्ड्स है आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है, जिसका मतलब है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, जिसमें 5 फीट और 10 सिलेबल होता है। दिस थिंग्स वी फाइंड। इसके अलावा जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रिगेन्ड लिखा है, एक उन्होंने खूबसूरत सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 इन 1652। मिल्टन की पहली पोएम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी रही है, जो 1629 ईस्वी में पब्लिश होती है, और ये उन्होंने तब लिखा था जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। और मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि जॉन मिल्टन का जीसस क्रिस्ट के प्रति एक अजीबो गरीब लगाव था। लेडी ऑफ क्रिस्ट उनको इसी वजह से, उन्होंने अपनी पोएम में क्रिस्ट को ही हीरो माना हुआ है। इवन पैराडाइज रिगेन में भी उन्होंने क्रिस्ट को, जीसस क्रिस्ट को ही हीरो माना है। सो यू विल कम टू नो, उनको उनके जो क्लास फेलो थे उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट कहते थे। और इसके अलावा आप ये देखेंगे उनका करली हेयर और उनका वुमेनिश नेचर, इसकी वजह से भी उनको ये टाइटल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, ही इज आल्सो नोन एज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। उनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता था, चूंकि उनको म्यूजिक का बहुत शौक था। ही वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक किसका हिस्सा था, एलिजाबेथन एज का एक पार्ट रहा। तो यू विल कम टू नो ही इज आल्सो नोन एज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, लेडी ऑफ क्रिस्ट एंड द इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा। दीज आर द 3 टाइटल जो हमें ध्यान में रखना है। इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा जॉन मिल्टन है, लेडी ऑफ क्रिस्ट कौन है, जॉन मिल्टन है, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट कौन है, जॉन मिल्टन है। उनको और क्यों याद किया जाएगा, उन्होंने सोनेट लिखा, कई सोनेट रहा 23, जिसमें लैटिन में भी इंग्लिश में भी। उनका एक इंपॉर्टेंट सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस है जो उन्होंने अपने अंधे होने पर लिखा, और उस सोनेट में वो कहते हैं कि हु इज अ ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड, ईश्वर की नजर में सच्चा उपासक कौन है। तो कहते हैं कि God doth not need either man's work or his own gift. The true worshipper in the eye of God is one who stands and waits to follow the command of God. ये उन्होंने बताया हुआ है। जितनी भी चीजें आपको मैंने बताया है, जो भी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये जॉन मिल्टन को लेकर के आपको कवर करना। ये पॉइंट्स आपको पहले भी लिखवाया गया था और आप उसको कवर करेंगे। कल लिख करके आप सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे उस पेज को भेजेंगे जो जॉन मिल्टन से रिलेटेड रहा, पॉइंट बना करके।
और इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जॉन मिल्टन जो है ड्रामेटिस्ट भी थे। ड्रामेटिस्ट में उन्होंने, ड्रामा में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने जो ड्रामा लिखा हुआ है दैट इज सैमसन एगोनिस्ट। उन्होंने ग्रीक ट्रेजिडी को फॉलो किया हुआ है। उनके ड्रामा का नाम सैमसन एगोनिस्ट है, जो 1671 ईस्वी में आया। उन्होंने दो एपिक लिखा, पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन। पैराडाइज लास्ट आपके यहाँ सिलेबस में है। पैराडाइज रिगेन भी एक एपिक है जो 4 किताबों में है, वो भी 1671 ईस्वी में आती है। पैराडाइज लास्ट 12 किताबों में है जो 1667 ईस्वी में आती है। इसके अलावा एरियोपैजिटिका उनका प्रोज वर्क रहा है जो आपका 1644 ईस्वी में आता है। और इसके अलावा उनके तमाम पैम्फलेट वगैरह भी रहे हैं, सॉनेट्स भी। और उन्होंने सॉनेट में कौन से सॉनेट को फॉलो किया, पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट को उन्होंने फॉलो किया। सो दीज थिंग्स वी फाइंड, दीज थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ड्रामा का नाम है आपका, व्हाट डिड आई टेल यू, सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट, SAMSON, सैमसन एगोनिस्ट, AGONISTS। एंड कैन यू टेल मी, इन्होंने एक एलजी लिखा था, मैंने लिखवाया था, उस एलजी का क्या नाम था? जॉन मिल्टन ने एक एलजी लिखा था, उस एलजी का क्या नाम है? एडवर्ड किंग, अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मौत पर उन्होंने लिखा था। फौजिया इज सेइंग लिसिडास। लिसिडास किसकी मौत पर रहा है फौजिया? एडवर्ड किंग की मौत पर। दैट्स गुड, एडवर्ड किंग की मौत पर। जॉन मिल्टन ने जो सोनेट फॉलो किया, उन्होंने पेट्रार्च को फॉलो किया या शेक्सपियर को फॉलो किया है? पेट्रार्च में क्या क्या होता था? ऑक्टेव मीन्स कितने लाइन सिस्टम था? आयशा, यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस। तो आपके यहाँ नेटवर्किंग इशू होगा। मेरे यहाँ नेटवर्क बिल्कुल बेहतर। ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती है? सेस्टेट में कितनी लाइंस होती है? राइम पैटर्न पेट्रार्च का क्या था? A B B A A B B A C D E समटाइम्स CDC, समटाइम्स CDC। पेट्रार्च की बिलब्ड का क्या नाम था? लाउरा। एंड यू रिमेंबर दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट द सोनेट, इनका पेट्रार्च के जब आप सोनेट को लेकर के बात करते हैं तो इनको फादर ऑफ सोनेट भी कहा जाता है और फर्स्ट ह्यूमनिस्ट भी थे। ये काफी पॉपुलर होता है। इसी पैटर्न पर आप देखेंगे जॉन मिल्टन ने भी सोनेट को फॉलो किया। लेकिन अगर सोनेट में किसी ने तब्दीली लाया था तो हेनरी हार्ड अल्लाफ सरे ने लाया हुआ था, जिन्होंने 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट का यूज किया। क्वार्टेंस का मतलब क्या है? कपलेट मीन्स, शेक्सपियर के सोनेट में कितने क्वार्टरेन है? एंड राइम स्कीम? आप गलत बता क्यों रहे हैं? आप बीच में आपने सही बताया, फिर बीच में एक एक स्टैंजा। A B A B C D C D E F कल कल आप तीनों पोएट, आप सभी लोग तीनों पोएट रटे रहेंगे। जॉन डन को भी आपको रटना है, विलियम शेक्सपियर को भी रटना है, जॉन मिल्टन को भी रटना है। अगर जॉन मिल्टन पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ लीजिएगा। मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, दोबारा तिबारा सुन लीजिएगा। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सक्यूज एट। और आप ये समझिए, ये पूरी क्लास जो है प्रिंसिपल आप देख रहे हैं, लाइव हो रहा है उनके पास। ये पूरी क्लास प्रिंसिपल साहब देख रहे हैं, ही इज मॉनिटरिंग और लाइव हो रहा है पूरा का पूरा। और हो सकता है उन्होंने VC के पास भी शेयर कर दिया हो।
नोट्स आप पहले के शेयर कर सकते हैं, कुछ वीडियोस उसके पड़े होंगे आप शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा आप कल प्रिपेयर किए रहिएगा अपने आप को। ठीक है, ओके।